इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू ट्रिगर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट द शिट स्टार्टेड with unpopular opinions that will enrage the hell out of all of you. देर किस बात की? अगर आपको नाराज होना है तो हो जाइए, डिबेट करना है तो कमेंट सेक्शन है. चलो शुरू कर रहे हैं. Unpopular opinion number one: AI edits are not as bad as they are projected out to be. I know many AI videos are just absolute shit and AI is pretty dangerous अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो. लेकिन many of the AI videos or AI infographics are actually good according to me. And this is coming from someone who has in the past used a lot of, or should I say, not a lot, but used some AI footage here and there while doing some opinion video or commentary video. I do understand why a lot of people are against AI, और मैं उन reasons के साथ सहमत भी हूँ, ना सहमत भी हूँ, and I am researching and trying to understand the advantages and disadvantages of AI in general. क्योंकि क्या है ना, ये AI जो है, it is a fairly new concept. आज की डेट में AI मेन स्ट्रीम मासेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है. जैसे कि बैक इन 2020 there was all the rage for cryptocurrency and crypto account, crypto investments, all the hype was there. Coming back to my thoughts on creators using AI generated images and videos in their videos, I honestly don't mind it. A lot of times many AI generated videos and images can give a full explanation or can explain certain things जो कि आपको orally अगर मैं बताऊं तो कई बार listeners को या audiences को समझ में नहीं आती है. ये मेरे साथ हो चुका है. तो AI या any image or any video which is playing as a cutaway, चाहे वो AI वीडियो ही क्यों ना हो, अगर वो व्यूअर को कुछ समझाने के लिए प्ले हो रही है या एक स्टोरी बताने के लिए प्ले हो रही है ताकि जो व्यूअर है वो स्टोरी को और अच्छे से समझ सके और अच्छी तरीके से उस कहानी में इन्वेस्ट हो सके, then I personally don't mind it as much. Also, अगर आप AI videos just like any other art, अगर आप उसको बनाओ और अगर आप उसको अपनी वीडियोस में इंटीग्रेट करो और ऐसे इंटीग्रेट करो कि वो मानो बहुत ही ज़्यादा रियल लगे, तो फिर AI can actually be very very good in telling a story. I feel the main reason why a lot of creators these days are resorting to AI generated images or AI generated videos is that कि आज की डेट में ना काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो कंटेंट होता है, स्पेशली जो आपको बी रोल के लिए चाहिए या विजुअल के लिए चाहिए, वो मेनली कॉपीराइटेड हो गया है. अनटिल एंड अनलेस आप एक रिएक्शन वीडियो कर रहे हो, अ लॉट ऑफ दीज वीडियोस आर राइटफुली कॉपीराइटेड. उनका अपना एक कॉपीराइट होता है. वी कांट हेल्प इट. ठीक है. सो नाउ क्रिएटर्स अगर उनको कुछ समझाना हो, अगर उनको कोई न्यूज़ क्लिपिंग से कुछ समझाना हो या केस स्टडी समझानी हो या कुछ भी कॉन्सेप्ट समझाना हो, तो वो लोग AI इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज AI गिव्स देम द फ्रीडम टू क्रिएट विदाउट हैविंग एनी कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन देम. और जो भी फ्री वीडियोस जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, फ्री क्लिप्स, फ्री वीडियोस, वो कई बार आपको कई चीज़ें समझा नहीं सकती है या वो कई चीज़ें समझाने में उतनी यूज़फुल नहीं होती है. येस, आई डू यूज़ अ लॉट ऑफ फ्री क्लिप्स एंड फ्री वीडियोज़ एंड इवन जिफ्स एट टाइम्स वेन एवर आई एम टेलिंग अ स्टोरी और डूइंग कॉमेंट्री. लेकिन AI also kind of gives me the freedom to explain things my own way
Whew, this AI topic is pretty complicated, and I am learning about it, to be very honest with you. If you have some more information and better insights, do share with all of us your knowledge in the comment section, and let me move on to unpopular opinion number 2. And this is going to be a very, very controversial, unpopular opinion rather, but let me just say it very rudely and in the face of it. As much as I loved Dhurandhar, as much as I enjoyed the performances, the music, the cinematography of that film, we need to really stop worshipping filmmakers and movies. Also, I am not in the favor of worshipping anyone, be it an actor, a cricketer, a businessman, a politician, a product, a film, a sport, whatever it is. I am not in favor of worshipping any particular entity. I am honestly fed up of people on social media thinking that Dhurandhar is some Oscar nominated film and trying to sort of be this wannabe film writers who on Twitter are trying to decode each and every scene of Dhurandhar. Okay, you love films, you love decoding cinema, no problem. But please just stop with, and I'll give you an example. जब एक क्लिप होता है जहाँ पे हमजा जो है वो खाना खा रहा होता है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, एंड वो आंसू जो है वो प्लेट पे आ रहा होता है, और एक जो पता नहीं बंदा है या बंदी है या एक हैंडल है, व्हाटएवर इट इज, वो लिखता है कि Hamza is crying while eating because the food that he's eating lacks salt, and tears bring in the salt in the food. Peak writing by Aditya Dhar. Like, तुझे पता है आदित्य धार ने किस इंटेंशन से ये सीन लिखा है? भाई तूने बनाई है क्या ये फिल्म? Oh God. Listen, Dhurandhar is a good film. Dhurandhar is an excellent film. No denying about that. लेकिन पूजा तो मत करने लग जाना यार. कई लोग तो सोशल मीडिया पे धुरंधर को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे धुरंधर दुनिया की पहली और आखिरी अच्छी फिल्म है जो इस धरती पर प्रकट हुई है. उससे पहले धरती पर और कोई अच्छी फिल्म आई ही नहीं है. क्योंकि होता क्या है कि एक तो नथिंग इज परफेक्ट, नॉट इवन गॉड. और अगर हम लोग किसी भी चीज़ को आइडियलाइज करने लग जाते हैं, फॉरगेट इवन आइडियलाइजिंग, अगर हम लेट्स टेक इन दिस केस अ फिल्म, हम लोग उस फिल्म को परफेक्ट मानने लग जाते हैं, हम लोग उस फिल्म की वर्शिपिंग करने लग जाते हैं, हम लोग उस फिल्म के कट्टर फैंस बन जाते हैं, देन फिर हम लोग इवॉल्व नहीं करते हैं, मेंटली इवॉल्व नहीं करते, इमोशनली इवॉल्व नहीं करते हैं. हम लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती है, बिकॉज हम लोग एक पर्टिकुलर फिल्म मेकर को प्रोटेक्ट करने में या एक पर्टिकुलर फिल्म को प्रोटेक्ट करने में हम लोग अपनी जी जान लगा देते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट विद फिल्म्स और फिल्म मेकर्स, it is also with actors or athletes or politicians, ideologies, anything. Because at the end of the day, we really need to evolve with time and age. We cannot be stuck to a particular person or a particular film or a particular book. Yes, they are good, no doubt about it, but there are better things out there in the market. दूसरी चीज़, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर कोई इंसान उसको लेट्स टेक धुरंधर के बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है जो आपको शायद उतना सूट ना करे, एंड दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, दिस मे बी अबाउट द राइटिंग, द कैरेक्टराइजेशन, द सॉन्ग्स, मे बी इवन let's take the performances for example. Okay, they may say कि उसको रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी धुरंधर में, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस थी, बोरिंग थी, whatever. And the film that you so love, you all will just start ending up defending either रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना. अगर आप अक्षय खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन हो, आप लोग उस फिल्म के चक्कर में उनके एक्टर्स को डिफेंड करोगे, उनके गानों को डिफेंड करोगे, उनकी स्टोरी को डिफेंड करोगे, without even doing any critical thinking yourself. Both blind hate and blind worshipping
are equally wrong. तीसरी चीज, and this has got something to do with fanaticism, your favorite person can be wrong at times. And this is the favorite person that you don't even know. They're not your spouse, they're not your parents, they're not your children, they're not your siblings, they're not your friends. They are just people whose work you really, really admire, and that's completely fine. But they can be wrong. Alright, so unpopular opinion number 3, and this is going to be a heavily controversial opinion because ये क्रिकेट के बारे में है. ठीक है, आज का जो क्रिकेट का जो माहौल है उसके बारे में है. Gautam Gambhir has been made the scapegoat for every India's loss. I feel Gautam Gambhir is just doing his job. Yes, he may make a lot of mistakes. और वो दुनिया का पहला ऐसा हेड कोच नहीं है जिसने मिस्टेक्स की हो. There have been many other head coaches in the past who have made tons of mistakes, who have costed India so many matches, so many bilaterals, so many ICC trophy matches, so many other tournaments. लेकिन एक तो he is a very misunderstood head coach, rightfully so because of his past statements. वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना ये था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो. कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते. हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना. अगर हम लोग गौतम गंभीर की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए तो गंभीर हैज बीन vehemently against the superstar culture, and rightfully so. ठीक है, even I have called out the superstar culture. We all have called out the superstar culture. We all despise the over worshipping of certain stars. ठीक है, especially in the Indian cricket scenario. And forget MS Dhoni. जब आप रवि शास्त्री को क्रिटिसाइज करते हो, राइटफुली सो, रवि शास्त्री ने भी अपनी गलतियां की. या तो हंसी से कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज नहीं उन्होंने देखी. बिकॉज हाँ, वो कमेंटेटर रहे हैं. हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है. बिकॉज आप खुद तो कुछ किया, एक शायद वहाँ पर ऑडी जो वो जीते थे, वो वर्ल्ड सीरीज वो जीते थे, वही जीते थे. उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते. एंड बहुत सारे जो भी, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, उन्होंने भी गलतियाँ की. लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका टेस्ट अपने होम में हारे थे, तो फिर ये कहना कि आई एम द सेम पर्सन जिसने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताया. सर जी, एशिया कप की पहले ऑपोजिशन तो देख लो, यूएई और ओमान थे. नाउ इसी से ही रिलेटेड, कमिंग टू द फोर्थ अनपॉपुलर ओपिनियन, superstar culture has primarily emerged, especially in places like cricket. Superstar culture has primarily emerged because of consistency and performances and not necessarily PR. अब मैं यहाँ पे सुपरस्टार कल्चर को डिफेंड करने नहीं आई हूँ. इनफैक्ट आई vehemently oppose the superstar culture and how सुपरस्टार को एक पेडेस्टल पे हमेशा रखा जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो बॉलीवुड हो गया. I have been one of the first people who has vocally opposed and abhorred the superstar culture. लेकिन इसका एक और पहलू भी है. इसका पहलू ये है that अगर कोई इंसान, let's take कोई एक्टर हो गया जो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी फिल्में करे जा रहा है, या एक क्रिकेटर जो टफ सिचुएशंस में एक मैच विनिंग नॉक खेल लेता है, देन एक ह्यूमन नेचर होता है टू रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट रिस्पेक्ट, टू अडोर दैट इंडिविजुअल फॉर देयर वर्क. This is not to say that superstars can never be wrong. Of course they can be. Even I can be wrong someday, you can be wrong, anyone can be wrong. So who are superstars? According to me, superstar culture का तब decline हो सकता है, and I'm using the word decline and not erasure because see, superstar culture around the world can never be erased because superstar culture or an individual worshipping culture
हम ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है, बिकॉज वी ह्यूमंस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लुक अप टू समवन, टू लुक फॉर एन इंस्पिरेशन, टू मोटिवेट आवरसेल्व्स. हम इंसानों को ना कोई चाहिए who we can look up to, और जिसका काम बहुत अच्छा हो, जिसके गुण बहुत अच्छे हो, और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हो इन वट एवर गिवन फील्ड दे आर इन. नाउ कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट, सुपरस्टार कल्चर का तब डिक्लाइन होगा जब बहुत सारे बेटर ऑल्टरनेटिव्स को लाया जाएगा अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट. मैं आपको क्रिकेट के थ्रू एक एग्जांपल देती हूँ. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, these two players, they are no longer playing test, neither they are playing any T20 internationals. Both have retired from T20Is and test. अभी सिर्फ ODIs खेलते हैं अभी आज की डेट में, अगर आप देखो. So now अगर let's take IPL में यशस्वी जायसवाल, बिकॉज उसने ऑल फॉर्मेट परफॉर्म किया है, यशस्वी जायसवाल फॉर राजस्थान रॉयल्स, ही गिव्स एन ऑरेंज कैप सीजन और राजस्थान रॉयल्स को वो सेमीज में लेके जाता है, सिंगल हैंडेडली राजस्थान रॉयल्स को क्लच मैचेस जिता देता है. देन मे बी यशस्वी जायसवाल कैन बी लाइक अ सुपरस्टार for RR and for India. Let's take Shubman Gill, plays well in all formats. T20Is, T20 bilaterals में बहुत अच्छा करता है, टेस्ट में, पर्थ की डिफिकल्ट कंडीशंस में या इंग्लैंड की कंडीशंस में कंसिस्टेंटली वो 100 मारता है, टेस्ट में बहुत ही ब्रिलियंट करता है, मैच विनिंग नॉक्स खेलता है टेस्ट क्रिकेट में, ODIs में भी वो मैचेस जिताता है, रोहित और विराट के साथ बहुत ही अच्छी मैच विनिंग पार्टनरशिप करता है. देन मे बी ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपरस्टार. आई थिंक गिल को तो काफ़ी बारी प्रमोट भी किया गया है. ईशान किशन ने अभी स्मैट में बहुत अच्छा किया, स्मैट में तो कैप्टनसी भी की, झारखंड की टीम भी जीती. अगर ईशान किशन SRH को एक ऑरेंज कैप सीजन दिलाते हैं और साथ ही MVP भी बनते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो SRH को लीड करते हैं और SRH को फाइनल्स तक ले जाते हैं, SRH के साथ टाइटल जीतते हैं, then maybe Ishan Kishan can be a superstar. And more importantly, उस जो राइजिंग टैलेंट है उसको ऑडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए. बिकॉज सी, वी ऑल मे कंप्लेन अबाउट कैपिटलिज्म एंड स्टार कल्चर एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल हैव द पावर. People have the power to voice. So use it. Speaking of social media, unpopular opinion number 5, and this is going to be a very tiny one. Thank God I left Twitter. I just left Twitter because Twitter दिन ब दिन mindless होता जा रहा है. Twitter is just becoming like a meme page. Twitter is just becoming a copy of what Instagram is. And even YouTube to a certain extent. It's just Twitter पे आप words से बोलते हो, and Instagram पे आप वीडियो से या फोटोज, मतलब स्टोरी डाल के आप एक्सप्रेस करते हो. बट जिस तरीके के ट्विटर के हाल है ना, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी देयर एंड आई वुड मच रादर बी ऑन रेडिट. आई नो रेडिट पे अलग टॉक्सिसिटी वगैरह है, लेकिन रेडिट पे फिर भी आप एक हेल्दी डिस्कशन तो कर ही सकते हो. और साथ ही साथ मे बी आई वुडंट माइंड बीइंग ऑन लिंक्डइन. आई एम प्रीटी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. आई नो अब लिंक्डइन से भी लोगों को प्रॉब्लम है, बट लिंक्डइन इज प्रीटी प्रोफेशनल. इट कैन बी प्रिटेंशियस, बट एटलीस्ट इट्स नॉट ट्विटर. एंड आई कैन टेल यू दिस विद एक्सपीरियंस. I have a Twitter account. It's just I don't use Twitter anymore that very much. I may just scroll through Twitter on my laptop once or twice, maybe in a month or maybe in 2 months. But that's about it. एनर्जी नहीं होती मेरे अंदर ट्विटर को स्क्रॉल करने की. मैंने ट्विटर अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया है. जब से मैं ट्विटर पे कम जाने लगी हूँ ना, मेरे दिमाग में नेक्स्ट लेवल पीस आ गई है. बिकॉज ट्विटर इज़ जस्ट, आई डोंट नो यार, ट्विटर पे क्या मैं बोलूँ, वो आई वोंट से दैट इंस्टाग्राम इज़ लेस टॉक्सिक. ऑब्वियसली इंस्टाग्राम इज़ नोन फॉर टॉक्सिसिटी, but Twitter is just next level shit. So unpopular opinion number 6, and this is the last one, and this can be a little dicey and debate like आपने YouTube पे टी चैनल्स देखे होंगे ना, टी गॉसिप चैनल्स जो रेडिट और इंस्टाग्राम और
बॉलीवुड की इनसाइडर स्टोरी के ऊपर टी स्पिल करते हैं, इन्फ्लुएंसर इनसाइडर स्टोरीज पर टी स्पिल करते हैं. A lot of these so-called tea channels, especially when they talk about Bollywood, most of them are heavily PR narrated. I know I'm not stating a fact but an opinion. A lot of tea channels can be right at times because वो भी एक opinion channel ही है, वो भी एक gossip को लेकर अपना opinion form करते हैं. लेकिन कई बार जितने भी ये so called टी चैनल्स है या गॉसिप सेक्शन वाले चैनल्स हैं, इवन दो आई लव लिसनिंग टू देम, इवन दो देयर इज अ गिल्टी प्लेजर इन्वॉल्व होता है कि क्या चल रहा है इस सेलिब्रिटी के साथ और क्या इनसाइडर स्टोरी है, क्या गॉसिप है. वी ऑल हैव दैट गिल्टी प्लेजर इनसाइड अस टू लिसन टू सेलिब्रिटी गॉसिप. बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स इन माई ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा PR पेड होते हैं, PR नैरेटिव के थ्रू लिखा जाता है. बिकॉज सी वी डू नॉट नो द होल ट्रुथ. इंटरनेट पे स्पेशली सोशल मीडिया पे ये टी चैनल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आइदर बिल्डिंग अ पर्सन और इन कैरेक्टर असैसिनेटिंग अ पर्सन. सो दैट्स इट. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरे अनपॉपुलर ओपिनियंस पसंद आए हो then do leave your thoughts and suggestions in the comment section down below. Do like this video, do share this video. If you want more such content then make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाई रह सके. Thank you so much for supporting my channel and उम्मीद करती हूँ मुझे आगे भी और सपोर्ट मिलता रहे. अगर आप मेरे इन ओपिनियन से डिसएग्री करते हो then we can engage in a healthy debate.